बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम जो है वो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है उनका एनालिसिस सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम लास्ट क्लास में स्टडी किया है उसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे एंड अस्सलाम वालेकुम। फैसल, क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? आपके बाकी साथी कहाँ हैं? गायब हो जाते हैं अचानक। सर मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ, एक मैसेज कर दें और इस दौरान में हम स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स तक हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो इन टेबल्स की मदद से समझ लें तो नहायत मुनासिब होगा। तो सबसे पहले थोड़ा एनोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लें, यानी थोड़ा इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लें, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी मज़ीद थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हैं समझने के पर्सपेक्टिव में। So what is the value of Q? The present state, and what is the value of the next state? Okay, according to this table, if JK has 0 and 0 logic, then there will be no change on the output. So that means there are two cases. We can have either 0 or 1 Q of t. So Qt can be 0 or 1. So we write Q here. This is the initial value, maybe 0 or 1. Then there will be no change. So we get the same value of Q. So it remain either 0 or 1, depending on the value of Q. Q depend कौन सी वैल्यू? अगर J के फ्लिप फ्लॉप बना लें, J के फ्लिप फ्लॉप बना लें हम, तो ये J इसकी इनपुट है, ये K इसकी इनपुट है, और यहाँ पे क्लॉक है, और ऐसे हमारे पास जो है इसकी आउटपुट है Q। So considering the second case from 0 to 1, when J is 0 and K is 1, then the next state is 0. So it means whatever we have here, maybe 0 or 1, the output state will be 0. It will become 0. यहाँ जो भी हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, output will be 0. Similarly, the 1 0 case. So in this case, whatever value of the Q will be, output will remain 1. The next is 1 to 1. Yeah, that means the inputs are 1 and 1. Both inputs are 1. So in this case, the output will complement. So if Q is 1, it becomes 0. If Q is 0, then it becomes 1. So Q prime. So this table in short can be written like this. And there is also another form in which we can write the same table.
that if we know J and K, and if we know the state, then what will be the next state? So in this case, the table can also help us to write. Let me initially write this, that we have 0, 0, and 0. All combinations we have to write. So there, because these are three variables on the left side, so we have eight combinations. Keyboard is something. And finally 1, 1. So if we can make a bit थोड़ा सा अगर हम इसमें डिफरेंस डाल लें, so this is the case from the same table. If we want to find the next state of Q, that means the next output, if we have the initial inputs are 0 and the value of Q is at this state 0 or 1. So in both cases, as we can see from when the inputs are 0, so this case the Q value remains same, it will not change. So this is the case here. The Q value will remain same and it will not change. So we can write here 0, and similarly we can write here 1. So it means the Q will remain same and the Q is primarily this means it is equal to Q. So we are writing the same table but in a different format. And for the next case, let me use a rectangle to highlight 0, 1. And this is the case 0, 1, in which the output should be reset. Okay, the next state is a 0 value appear on the Q. So the next state is 0, so we write here 0 and 0. 0 here, similarly 0 here. And for the next case, just strike down. This is the case primarily, this one and this one. So the output will be 1. So in both cases, the output will be 1. And for this case is the last two primarily entries in this truth table, and the output will change toggle or complement. So 0 will become 1 and 1 will become 0. So these tables are the same tables, and we can derive the similarly this information from the same table. And one interesting table I would like to introduce here as well is how the change in the output occurs. Okay, so I write here like on this pattern. So I write Q here and Q plus here and J here and K here. To just want to show that if we want to make a change on the output of a flip-flop, what inputs are primarily required. Okay? So similarly, because it's a truth table and 2 input values, so we can have 4 combinations, and we are already familiar with these combinations.
the question is that if we want the output will remain same for a JK flip-flop, what input should be given to the JK flip-flop? So remember JK flip-flop जो है वो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ जो उसको हटा दिया था, दोबारा बना लेते हैं इसको यहाँ. So we have J, we have K, we have clock, and we have Q. So now we want to primarily we want to know that किस तरीके से ये change रहेगी. So this table will help us that we want to know. एक color change कर लेता हूँ इसको. So we want to have this information 0 to 0. Similarly, there is one more entry 0 to 0. So this is the present state Q. This Q plus is the next state. Okay, so there are two entries in this table which shows primarily the relationship between inputs. And what are those? That J is 0 and K is 0 for this case. And J is 0 and K is 1 for this case. So this is very interesting. So J remain the same. So we can write J 0. But K can be 0 or K can be 1. So in that case, we have a special symbol X to remember don't care condition. Okay. So this represents a don't care condition. ये हम पढ़ चुके हैं. Don't care condition. The value can be 0 or 1. Don't care condition. So similarly, now we are interested to know that if this 0 to 1. So the Q value is 0 and we want the Q value become 1. So we go again to the table and see where this condition occurs. Okay, 0 to 1. So 0 to 1 occur here. 0 to 1 occur here. So in these two cases, as we can see, the J value remains the same 1, whereas the K value can be 0 or can be 1. So in from these two cases, we can conclude that the J value should be 1 and K value can be either 0 or 1. Similarly, we have next cases, and in the next case we have the Q value 1 and the present value Q, and the next value Q plus the next value is now 0. So these cases from 1 and then we go to 0 occur in two cases from this table, and we can see that it is 1 to 0 can J should be 0 and K should be 1, and the second case is J can be 1 and K can be 1. So K will remain 1, a constant value, whereas the J value changes, can be 0, can be 1. So we can write that J can be don't care, but K should be 1. Now the last case we can find from 1 to 1. So I need to make another change in the color. So 1 to 1 occur in this case, and similarly 1 to 1 occur in this case. So as you can see, the value of K is 0 for both, but J value varies. So I write here that K value is 0 and so these tables can be derived from this characteristic table, and then we can primarily analyze and design circuits
बेस्ड ऑन दीज टेबल्स। तो ये टेबल्स जो है ये हमें चाहिए होंगे। अगर हमें ये एक टेबल मिल जाए जो कि 5.1 टेबल में फ्लिप फ्लॉप का स्टैटिस्टिक टेबल है, we can after some थोड़ा सा काम we can generalize these tables into different forms in which we can determine that if we have a particular input and we know the state, the present state, we can find the next state. So this table is helpful. The second thing is, if we want to make a transition in the state, हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर एक जो स्टेट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, then what inputs are required to make that change? So these things are possible by just intuition, यानी जो हमने ये टेबल ऐसे स्टार्ट किया था, and then we are able to generalize this table and make the table more understandable by different forms. बेटा यहाँ में मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा. If you have any question, you may ask me. जी फैसल, आपका कोई सवाल है बेटा? नो सर. ये चीजें समझ में तो आ रही है ना फैसल आपको? जी सर. मुस्तफा आप बताइए. जी सर, सवाल नहीं है. ये इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बहुत अच्छा और क्लियर हो जाएगा. नासिर आप बताइए. नासिर आप बताइए बेटा. ओके, नासिर कह रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा से इस चीज़ को समझा दें. ओके फाइन. हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ सारी चीज़ें. इंटरेस्टिंग. मैंने भी बहुत अरसे के बाद ये चीज़ की है. मुझे भी अच्छा लग रहा है ये. बट एनी हो, okay, so suppose this table is given to you and this table is not very difficult to remember because it combines both D flip-flop table and T flip-flop table to a single package. D flip-flop को थोड़ा समझ लेते हैं. D flip-flop में अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो वही होती है जो उसकी इनपुट होती है. So we start with the D flip-flop. So in a D flip-flop, the next state, the present state and the next state. So D can have either 0 or 1. जो D flip-flop है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और उसकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो भी कोई वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जांपल मे बी इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. तो हम इसकी जगह पे क्यू ही लिख लेते हैं. क्यू में बी 0, क्यू में बी 1. सो द नेक्स्ट स्टेट वी नो कि जब क्लॉक पल्स आएगी तो उसके बाद उसकी जो स्टेट है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी. जो भी. अब इसी टेबल को हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं. Let's say on the input side we have the knowledge of input and we have the knowledge of state, and we want to know what is the output. That means what is the next state. Now there are two variables on the left side in this truth table, so we can write 0 0, 0 1 1 0 and 1 1. Okay. Essentially this table is the same जो ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको अब क्यू की वैल्यू 0 भी ले रहे हैं 1 भी ले रहे हैं, क्यू की वैल्यू 0 भी ले रहे हैं और 1 भी ले रहे हैं. तो इट कंस्टिट्यूट द सेम टेबल बट इन टू डिफरेंट
थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, सो वी नो दैट द आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ द डी, तो हमें 0 0 लिख देना है यहाँ पे, दैट्स इट, खत्म। और इसी तरीके से हमें पता है कि नेक्स्ट पल्स पे 1 हो जाएगा ये, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इसी टेबल को हम यूज करते हुए ये मालूम कर रहे हैं। नो कंसिडर अ केस in which we are to find the value of input के जिसमें हमें जो है एक स्टेट चेंज करना, तो स्टेट इसी तरीके से ये एक तो स्टेबल ही तो है, तो तमाम जो कॉम्बिनेशन है वो लेने पड़ेंगे। अब हम डी की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या डी की वैल्यू हो के नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाए। हमें पता है यहाँ से कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो वही होगी जो डी की वैल्यू होगी, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू क्यू लिखी हुई या 0 लिख दें, इसका मतलब नेक्स्ट ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट ये 1 हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम डी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी इज प्राइमरली द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फ्लिप। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज किया था। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं इस टेबल को? जनरलाइज इस सेंस में कर सकते हैं कि आप देखिए कि 0 0 यहाँ दो सूरतों में अपीयर हुआ है, यानी 0 से 0, और डी क्यू की वैल्यू 0 भी थी और 1 भी थी, तो क्यू की वैल्यू पे ये डिपेंड, क्यू कैन बी डोंट केयर, इट ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। तो ये तो केस था इसका डी फ्लिप फ्लॉप। अब हम टी फ्लिप फ्लॉप की तरफ कर जाते हैं और यही चीजें जो है ना इसमें रिपीट कर, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप यहां से स्टार्ट कर, ठीक है। तो टी की इनपुट है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसी तरीके से आगे देखें कि क्यू पे क्या चीज मौजूद है, और क्यू जो नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू आएगी फ्यूचर वैल्यू, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सो क्यू हम इसी टेबल से जनरेट कर रहे हैं, तो जब ये 0 होगा तो नो चेंज, ओके, तो क्यू क्यू ही रहेगा। लेकिन जब 1 होगा, टी फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट 1 होगी, तो वो चेंज हो जाएगा, तो क्यू चेंज होके क्यू कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी अगर 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा। अब हम इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए भी यहाँ एक छोटी सी स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, इस तरफ मिटा स्पेस। So I take the T, Q and Q plus, that means the next one. Now because this is a truth table, I have to show all values, all combinations in binary. Okay, now I move here and see what should be the next value. Essentially, this is the same table जो यहाँ पे है, and we get the same value of Q for 0 input. For 0 input, we get the same value of Q. So 0 and 1. And next is for input 1, we get a complement. So for input 1, we get a complement. So 0 का complement 1 होगा और 1 का complement 0 होगा। और अगर हम गौर से देखें तो ये इक्वेशन तो एक एक्सक्लूसिव आर गेट की बन गई, क्योंकि ये तो डेफिनेशन एक्सक्लूसिव आर गेट की है। सो we can write Q plus the next state is actually obtained by taking the exclusive OR
of both inputs t and the present state. So this way we can find a characteristic equation which is primarily used to generate this table. ये टेबल जो है और ये जो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है ये सेम एक रिलेशनशिप है. हमें पता है कि ट्रुथ टेबल को सॉल्व करके हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक बुलियन एक्सप्रेशन होती है. सो द लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. Okay, the final form is that we want to write a table in which from the inputs we can find for the for the flip flop the input to make that change. Okay, so 0 0 0 1 1 0 and 1. So from this table we can see that if we want to make q the same, okay, the same value output. So this happens in two cases. This happened in only one case, okay, 0 to 0. There is no another case which goes from 0 to 0. Only one case, 0 to 0. So in this case the t input is 0. So we write here 0. Okay. Similarly, there is only one input when the q changes to q plus, and that is for t0. Okay. And for there are two cases when 0 to 1 and 1 to 0 can be achieved for t is 1. Okay. So the same we have t is equal to q exclusive r of q plus. Okay, जो t जो है it's also an exclusive can be obtained through the exclusive r of q and q plus. But remember, at one point in time we either have q or either have q plus. एक ही वक्त में दोनों चीजें नहीं हो सकती. So we stick with this equation and predict the next value, the future value of q by the input and the present value of the state. Okay, so the input and the state, they are used to predict the future value or the next value for this t flip flop. ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में चला गया हूँ. ये किताब ने इसी अंदाज में इसको लिखा है, लेकिन इतना ट्रुथ टेबल उसने नहीं बनाए. जी नासिर, आपकी समझ में ये आ रहा है? नासिर का रिस्पांस चाहिए, क्योंकि नासिर ने कहा था तो हमने जो है इसको रिपीट किया है. जी नासिर, नासिर कह रहे हैं कि ये उनकी समझ में आ गया है. और अब हम इसी चीज को जेके फ्लिप फ्लॉप पे इम्प्लीमेंट करते हैं. देखिए डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप ये थोड़े इजी, थोड़ा सा आसान है, और जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो इन दोनों को कंबाइन करता है. Okay, now here we have JK flip-flop, and in JK flip-flop we want to first separate this in the form of Q and Q plus
रिमेंबर इसमें तो हम क्यू ही लिख देंगे, यहाँ पे भी क्यू लिख देंगे, यहाँ पे भी क्यू लिख देंगे, यहाँ पे भी क्यू लिख देंगे, और हम ये देखेंगे कि इस क्यू में क्या चेंज आ रही है। पहले में देखें नो चेंज, तो यहाँ क्यू लिख देंगे। दूसरे में देखें रीसेट है, तो 0 लिख देंगे। और तीसरी जो रो है, इसमें अगर आप देखिए तो 1 लिख देंगे, एंड द फोर्थ वन इज इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसी चीज को अब हम जो है वो फर्दर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि Q कैन हैव ए वैल्यू ऑफ ईदर 0 और Q कैन हैव ए वैल्यू ऑफ ईदर 1। तो इस तरीके से हम एक टेबल नया बनाएंगे J के जो कि इनपुट्स है एंड Q जो कि स्टेट है, ठीक है। एंड सिमिलरली कि इन इनपुट से कैसे हम मालूम कर सकते हैं आउटपुट। तो हम यहाँ पे तमाम कम्बिनेशन लिख देंगे 0 0 0, सिमिलरली 0 0 1। तो एसेंशियली एक लाइन इसकी होगी इस टेबल की, फिर 0 1 0 1, और Q कैन बी 0 Q कैन बी 1, ये दूसरी लाइन होगी इस टेबल की। सिमिलरली वी हैव 1 0 0 and 1 0 1 and 1 1 0 and 1 1 1. So what will be the next value? It is very easy to determine here that the Q remain the same, so we get the same value as of Q. हमने Q ही लिख दिया यहाँ पे। Then the next value is Q become 0, so हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके बाद हमें 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ 1 है, so हमने 1 लिख दिया। इसके बाद हमें कम्प्लीमेंट करके लिखना है, तो 0 को 1 बना देंगे और 1 को 0 बना देंगे। So this is how we write the same table, but now in a form जो हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास इनपुट पता हो, हमें स्टेट मालूम हो, so we can find the next value or the next state. अब हम इसी को मजीद जनरलाइज, अब हम इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जिसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एक रिक्वायरमेंट आती है कि आप प्रेजेंट स्टेट को चेंज करें, तो हमें J और K पे क्या इनपुट चाहिए। और हम चूंकि एक ट्रूथ टेबल है, हम जल्दी से लिख लेंगे तमाम कम्बिनेशन इनपुट की, और उसके बाद अब ये देखेंगे कि 0 से 0 कहाँ ये हो रहा है। 0 से 0 देखेंगे हम कहाँ हो रहा है, और यहाँ दो केसेस ऐसे हैं जहाँ 0 से 0 में ट्रांजिशन हो रही है, और इन केसेस में J 0 है और K की वैल्यू 0 या 1 है। तो J तो 0 लिख सकते हैं, K की वैल्यू 0 या 1 तो नहीं लिख सकते, तो डोंट केयर लिख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये वैल्यू 0 हो या 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी की वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब 1 से 0 में जा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि 1 से 0 में कहाँ जा रहे हैं। 1 से 0 में यहाँ जा रहे हैं, 1 से 0 में यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें K की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने जो लास्ट ट्रूथ टेबल जो है वो मालूम किया। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। जी नासिर, आप बताइए।
ओके, अब हम मिटा सकते हैं इसे और आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। ओके, जिस तरह हमने एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पढ़ा था, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। किसी तरीके से ये फिट हो जाए ताकि हम इसको रीड कर सकें। ओके, so analysis describe what a given circuit will do under certain operating conditions. The behavior of a clocked sequential circuit is determined from the inputs, the outputs and the state of its flip-flops. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो इनपुट है और एक सर्किट के अंदर जो है वो स्टेट और एक जो है वो आउटपुट। Okay, so there are three things: input, state, and output. The output and the next state are both a function of the input and the present state, and also the state can be represented as Q for individual memory elements, and the next state can be represented with the Q plus or QT plus 1, and there is the output also depend on the present as well as the next output. This can also be a case because there is an internal transition of state inside the logic. और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है the presence of a memory element. और मेमोरी एलिमेंट क्या हो सकते हैं? आमतौर पे हम मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप को कह रहे होते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर हो सकता है और वो जो क्या नाम है उसका इंडक्टर हो सकता है, बिकॉज दीज और इवन एक मूविंग पार्टिकल हो सकता है। द एनालिसिस ऑफ ए जैसे पेंडुलम है, आपको पता है पेंडुलम जो है अगर उसको थोड़ा सा ऊपर से खींच के छोड़ दे तो अब उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। ओके, द एनालिसिस ऑफ ए सीक्वेंशियल लॉजिक circuit consists of obtaining a table or diagram for the time sequence of input, output and internal states. तो एनालिसिस में क्या करते हैं? सर्किट से एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, या उससे एक डायग्राम बनाते हैं जिससे जो टाइम सीक्वेंस है उसका अंदाजा होता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या करते थे? एक सर्किट होता था, उससे ट्रुथ टेबल बनाते। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेट डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें पता चल रहा हो कि स्टेट जो है वो कैसे चेंज हो रही है। इस चीज को हम सीखेंगे इस सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हम एक सर्किट जो बुक ने दिया हुआ है उसको देखते हैं। ओके, माय क्वेश्चन इज, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है? कोई भी आंसर दे सकते हैं। मुस्तफा आप बताइए, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है इस सर्किट में? जेके सर।
फैसल आप बताएं। JK जी नासिर आप बताएं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ फ्लिप फ्लॉप कहाँ है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जी फैसल सही आप बताएं। D सर। मुस्तफा आप बताएं। जी सर D++। नासिर आप बताएं कितने फ्लिप फ्लॉप हैं इसमें। नासिर दोबारा बताएं इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप हैं। ओके लगता है मेरी मेहनत थोड़ी सी काम ला रंग ला रही है। ओके एनी हाउ हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आपकी मदद से एक चीज जानते हैं। ये एक्स इनपुट है, ये ए इनपुट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ए इनपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी जी बताइए। ये कौन सा गेट है फैसल आप बताएं। सर एंड है। एंड गेट है, वेरी गुड। मुस्तफा आप बताएं इसकी आउटपुट क्या होगी। A आएगी सर। ए एक्स, ठीक है। चले वेरी गुड, ए और एक्स, क्योंकि पता है हमें दोनों इनपुट्स जो है ना वो आपस में एंड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। ओके यहाँ पे एक्स है, अब नासिर से पूछ लेते हैं। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, बी आ रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी नासिर